What do you mean by ultra vires? Ultra vire means doing that act which is beyond your power. You are doing such act which is beyond your power to do. You are some authority, public authority. You are following law. You are working according to the law. Which law? Law passed by the parliament. Let's call it a parent act. On any issue, a parent act has been passed by the parliament. Now, under parent act, the executive or the government authorities or the governmental officers, public officers, they are bound to act according to the framework of the law passed by the parliament. And under those framework or under those laws, certain authorities are given discretion that they can pass any rules and regulations according to their discretion, because for the implementation of the act properly they have to pass certain orders which according to them are proper in the particular circumstances. So they are given these powers by the parent act itself. But for example, some officer is using that power beyond the actual power given by the parent act to him. So he is using that power which is not given to him by the parent act, or he is using that power excessively. He has got a limited power, but he is using it unlimitedly. He is using an unlimited power which was actually not granted to him by the parent act. He is abusing his position of authority. Whenever certain public officers abuse their position and they are going beyond the scope given by the law, then they are acting ultra vires. What they are acting? They are acting ultra vires. If they are acting within the powers given to them, then that's okay. It is known as intra vires. It is known as intra vires. Intra vires act can't be challenged in the court because he is working according to the powers allotted to him by the parent act, or whatever power was given to him, he is using that power, that much of power which was given to him, whether he is passing an order or whether he is doing some official act. He is using that power which was allotted to him by the higher authorities or by the legislature through the law. But if he is using the powers which were actually not granted to him, or he is excessively using his power beyond the scope given to him by the parent act, then it means he is working or he is acting ultra vires the parent act. Ultra vires can be the parent act also, ultra vires can be the constitution also. If he is working against the constitution, if that public official has done some act which is against the constitutional provisions, then that act can be challenged in the High Court or Supreme Court under Article 226 and 32. That act is ultra vires the constitution, and if that act is ultra vires the parent act, then also it can be challenged in the High Court under 226 and in the Supreme Court under Article 32. So जितनी पावर्स आपको इस्तेमाल करने के लिए दी गई हैं, आप उस पावर से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपनी पावर्स को ओवर यूज कर रहे हो, जितना यूज करने को आपको कहा नहीं क्या, उससे ज्यादा आप यूज कर रहे हो, तो यू आर एक्टिंग अल्ट्रा वायर्स। एक आपको एग्जांपल बताता हूं। पेरेंट एक्ट ने एक ऑफिशियल को डिस्क्रिप्शन दे दी कि आप ये रूल बना सकते हो, आप ये रूल बना दीजिए, एंड दिस रूल इज कवर्ड बाय द पेरेंट एक्ट। तो ये रूल में आप क्या क्या लिखोगे वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। उसने रूल बना दिया, बट दैट रूल इज नॉट कवर्ड बाय द पेरेंट एक्ट। उसने बिल्कुल डिफरेंट ही रूल बना दिया, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ पावर्स गिवन टू हिम, बिल्कुल डिफरेंट रूल बना दिया। तो क्योंकि वो डिफरेंट रूल है, वो पेरेंट एक्ट में दिया नहीं गया, उसका स्कोप दिया नहीं गया, सो दैट रूल कैन बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट बाय द कॉमन सिटीजंस ऑफ इंडिया, एंड दैट रूल कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स। और अल्ट्रा वायर्स हो गया तो वो नल एंड वॉइड हो गया। क्या हो गया? नल एंड वॉइड। जैसे किसी अधिकारी को कहा गया है कि आपने ये डिस्प्यूट हल करना है,
कोई भी पार्टी आपके सामने आती है तो यू हैव द पावर टू सॉल्व द डिस्प्यूट। जैसे एसएसपी को ये पावर दे दी कि कांस्टेबल, दो कांस्टेबल में आपस में कोई झगड़ा हो गया या कोई भी ऐसी डिपार्टमेंटल को प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है दो कांस्टेबल्स में आपस में, तो एज एन एसएसपी यू हैव गॉट द पावर्स टू डिसाइड द केस। अब इसमें क्या है, एसएसपी एक कांस्टेबल की तो बात सुन रहा है, दूसरी कांस्टेबल की बात ही नहीं सुन रहा, ना तो उसका एविडेंस लिया जा रहा है, ना उसको बोलने दिया जा रहा है। तो इसी बंदे के बयानों के आधार पे एसएसपी ने फैसला कर दिया इस बंदे के खिलाफ। तो क्या ये नेचुरल जस्टिस की उल्लंघना नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, दोनों पार्टियों को सुन के ही एसएसपी ने फैसला देना है। और पेरेंट एक्ट जो लग रहा है उसमें कहा गया है कि एसएसपी हैज द पावर टू डिसाइड, बट ही हैज टू डिसाइड इट फेयरली। और फेयरली क्या होता है? नेचुरल जस्टिस जब फॉलो किया जाए। ही हैज नॉट टू डिसाइड इट आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरी काम नहीं करना, ही हैज टू डिसाइड इट फेयरली। फेयरली का क्या मतलब? दोनों पार्टियों को सुन के ही फैसला देना, दोनों पार्टियों को सुन के ही फैसला देना, मतलब नेचुरल जस्टिस फॉलो करनी है, नेचुरल जस्टिस फॉलो करनी है। एंड इफ ही इज नॉट फॉलोइंग नेचुरल जस्टिस, इसका मतलब इज नॉट यूजिंग द पावर्स अलॉटेड टू हिम, अकॉर्डिंगली ही इज मिसयूजिंग हिज पावर्स। तो ये उसका जो एक्ट है वो अल्ट्रा वायर्स है पेरेंट एक्ट के। तो इसमें एक केस लिख लो, स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 का केस है। तो इसमें भी एक ऑर्डर पास किया गया था, तो उस ऑर्डर को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया था और कहा गया है कि पावर की जो एक्सरसाइज करते हैं कोई भी अथॉरिटी, वो जो एक्सरसाइज है दैट शुड बी लिमिटेड। लिमिटेड कितना? जितना उसको पेरेंट एक्ट ने अलाउ किया है। वो एक्सरसाइज जो पावर की वो कर रहा है वो लिमिटेड होनी चाहिए, अनलिमिटेड पावर नहीं एक्सरसाइज कर सकता। और कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए उसके ऊपर वो बताएगा पेरेंट एक्ट, जितना जो पेरेंट एक्ट ने लिखा हुआ है। कोई भी अथॉरिटी है इंडिया में, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे एसएसपी है या डीसी है या कोई भी है, जिसके पास कोई पावर है, जिसको कोई डिस्क्रिशन दी गई है, वो अपनी डिस्क्रिशन जितनी की उसको दी गई है उतनी की यूज करे, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। कम यूज कर सकता है, ज्यादा तो बिल्कुल भी। सो ही और शी कैनॉट एक्ट बियॉन्ड द पावर्स गिवन टू हिम, and if he or she acts beyond the power, then that act will be declared as ultra vires. Ultra vires the act, ultra vires the parent act which is actually applied in that particular case. And if that parent act is ultra vires the constitution, then that parent act can also be declared as ultra vires, क्योंकि ultimately सबसे बड़ा कानून क्या है हमारा? संविधान। संविधान के अकॉर्डिंग सारे लॉज चलने चाहिए, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर देंगे वो सारे अल्ट्रा वायर्स हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। और सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो एक्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज कैन बी अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट मार्कर of the laws or of the acts, because until and unless the constitutional provisions does not prevail in India, there cannot be proper democracy. डेमोक्रेसी तभी चलेगी जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रिवेल होंगी, ठीक है। फॉर दैट सुप्रीम कोर्ट इज वर्किंग 24 आवर्स। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। हाई कोर्ट